students, good morning. Today I am going to teach you natural resources. As you know, the resources which are present in this nature are called natural resources. The nature has gifted us very important resources, the air, water and soil, which makes the non-living resources, as well as the plants, animals and microorganisms which are using these resources and making the living resources. They have the life, so they are called living resources. So the natural resources are in the form of abiotic, that is called non-living resources, and the biotic resources, that is called the living resources, that is living resources, and these together makes the ecosystem. So the resources, that is the abiotic and the biotic. The abiotic resources is divided into three parts. These are the non-living resources. These resources have no life because air has no color, air has no odor, इसमें कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, लेकिन ये लाइफ देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एयर, वाटर एंड सॉइल आर द नॉन लिविंग रिसोर्सेज which are very important for the survival of the living organisms like plants, animals and microorganisms. So these are the natural resources, that is the air, water and soil. Air is the together making the atmosphere, atmosphere. Water is making the hydrosphere, and soil is making the lithosphere. As these resources are very important for the survival of the living organism, so the atmosphere is the Vayumandal, the hydrosphere is the Jalmandal, pani, hydro means water, and lithosphere is the Sthal Mandal, and these together making the Vayumandal, that is called biosphere. So biosphere, these together making the biosphere, where life is possible. So these resources are very important for the survival of the every living organism like plants, living animals including the human beings, and the microorganisms are also making the living component of these natural resources. Microorganisms, these are the living resources together making the natural resources. So air is a mixture of different gases, as we know. वायु यहाँ पर प्रेजेंट होता है पृथ्वी के चारों तरफ. उसमें हवा जो है वो एयर जो है इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, यू नो, इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में कौन सा गैस है आप जानते हैं कि एयर में जो बहुत सारी गैसेस है इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो उसको हम एक एक करके देख लेंगे कि विच आर द प्रेजेंट ऑन दिस एयर. एयर में क्या क्या प्रेजेंट है. तो आप देख रहे हैं कि एयर में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन. एयर में सबसे अधिक मात्रा में, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज 78%. टोटल जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट 78%. ऑक्सीजन, नेक्स्ट जो गैस है वो है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज 21%, 20.99%, and approximately we conclude at 21%. This together makes 99%. Now the next one is the carbon dioxide, CO2, carbon dioxide gas. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला है CO2. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बहुत कम मात्रा में है, 0.03%. अभी तो ज़्यादा हो गया 4%, 0.03%.
बट एक पहले हम लिखते थे 0.03%। उसके बाद इसमें अदर गैसेस है। अदर गैसेस का जो मात्रा बच रहा है वो है जिसपे आपका हीलियम है, आर्गन है, हीलियम है, आर्गन है, और भी इस पे एक वाटर वेपर भी है आपका, वाटर वेपर, वाटर वेपर ये 0.07% है। इसमें अदर गैसेस में आपका आ जाएगा। तो वाटर वेपर का जो परसेंटेज है वो 0.04% और इसको ले लीजिए आप जो है 0.01%, ये अदर गैसेस। तो वाटर वेपर एंड अदर गैसेस का मिला के वाटर वेपर एंड अदर गैसेस 0.07% ये इंक्लूडिंग है, और ये 7 और 3 मिल करके आपका हो गया 1%, और ये 99 और 100%। इन दिस वे एयर इज ए मिक्सचर ऑफ different gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide. Other gases are in very trace amount or very small amount like helium, argon, other gases, and the water vapor माने जलवाष्प जो उसमें थोड़ा वाटर का भी मात्रा रहता है which makes the 100% component of the air. This air is important for every living organism. Air is first of all very much important for respiration, for breathing. चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी को एयर चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल एज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, एज ए रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए। ये एयर का जो दूसरा रोल है, एयर हेल्प्स इन द और दैट इज द एयर मेक्स द एटमॉस्फेयर एंड दिस एटमॉस्फेयर हैज अ रोल इन द क्लाइमेट कंट्रोल। बिकॉज क्लाइमेट जो है हमारा कंट्रोल रहता है, हमारा वातावरण में जो जलवायु का एक मात्रा है, आप देखते हैं कि अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, फिर कुछ दिन बाद जो है गर्मी का मौसम आ जाएगा, फिर बरसात का मौसम आता है, फिर उसके बाद जाड़ा, इस तरह से जो है क्लाइमेट चेंज करते रहता है एंड द एटमॉस्फेयर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लाइमेट कंट्रोल। आप देखते हैं जैसे क्लाइमेट जो है हमारे यहाँ का एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं है ड्यू टू द very small amount of carbon dioxide present in the air. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत कम है, 0.03%, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखा है, और हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है वो 0 से लेकर के लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। बहुत ठंड में भी -10, 15, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, लेकिन आप देखिए मून पर क्लाइमेट नहीं है, क्योंकि मून का क्लाइमेट कंट्रोल में नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर रेंज बहुत वेरी करता है। वहाँ पर दिन के समय का टेम्परेचर जो है आपका 114 डिग्री सेल्सियस है, समझिए 114 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री में तो पानी खौल जाता है, और दिन के समय 114 डिग्री से वेरी करके रेंज चला जाता है, नाइट के समय -190 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर इज वेरी चेंज कर रहा है, बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, जिसके कारण यहाँ पर लाइफ का पॉसिबिलिटी मुश्किल है, नहीं है। बट अर्थ में टेम्परेचर का रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट रह रहा है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, बहुत गर्मी में भी 40, 42, 45 से ऊपर नहीं जाता है, और बहुत एक्सट्रीम ठंड में भी 5 डिग्री, 7 डिग्री, यानी एक रेंज जो है वो 40 से 50 डिग्री के बीच में ही वेरी कर रहा है, यहाँ पर लाइफ का पॉसिबिलिटी है। और जो अदर प्लैनेट है जैसे मार्स है, मंगल, वो बहुत वेरी मच सिमिलर है, जस्ट क्लोजर टू द अर्थ है, लेकिन वहाँ लाइफ क्यों नहीं संभव? बिकॉज वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा है, 95 to 97% तक वहाँ CO2 है, विच मेकिंग द मार्स एज अ वेरी हॉट प्लैनेट, और बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी है। इफ द अमाउंट ऑफ द CO2 विल डिक्रीज देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। देयर इसमें एक्सपेरिमेंट चल रहा है, खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक कि क्या कारण किया जा सकता है कि हम CO2 का अमाउंट गिरा सकते हैं और लाइफ का पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। तो द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल में जो हमारा ये जो कंपोजिशन है एयर का, ये इस तरह से है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत कम होने के कारण जो है हम लोग यहाँ पर सही मात्रा होने के कारण क्लाइमेट जो है अंडर कंट्रोल रहता है, और एटमॉस्फेयर उसको कंट्रोल करके रखता है। सो दिस इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। एयर इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एयर का इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं, ब्रीदिंग पर्पस के लिए हवा चाहिए,
फिर हम लोग देखते हैं कि हवा जो है कोई भी बर्निंग करना है, जैसे मान लीजिए हमको किसी भी चीज़ को जलाना है, अगर हवा नहीं रहेगा वी कैनॉट बर्न, तो हम लोग उसको बर्न नहीं करा सकते हैं। तो फिर हम लोग कोई भी रिएक्शन कराना है, किसी भी चीज़ को बर्निंग कराना है, तो उसके लिए भी एयर का नेसेसरी होना बहुत ज़रूरी है और ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है। फिर सर्वाइव करने के लिए मान लीजिए बहुत सारा प्लांट है, एनिमल्स है, वो जो है एक सही कंपोजिशन रहने के कारण ब्रीथ जो है वो नॉर्मल जर्मिनेशन करता है। तो एयर इज नेसेसरी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एयर रेस्पिरेशन करता है। फिर बर्निंग प्रोसेस के लिए जो हम लोग करते हैं उसके लिए भी हवा चाहिए और ये एटमॉस्फेयर में इसका बहुत रोल है, इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट है कि ये एयर जो है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इसमें बहुत सारा अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो है गेट मिक्स्ड विद दिस एयर विच मेकिंग द एयर पॉल्यूटेड and so this creates the air pollution. The undesirable substances by human activity, जैसे मनुष्य के मानवीय क्रियाकलाप के कारण इस जो हवा है उसमें बहुत सारा अवांछनीय तत्व अनडिजायरेबल सब्सटेंस भी मिक्स हो रहा है। जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, कल कारखाना से निकलने वाला जो कचरा है, धुआं है, वो हवा में मिक्स होता है और हार्मफुल गैसेस जो मिक्स होने के कारण वो अनडिजायरेबल हम नहीं चाहते फिर भी वो मिक्स हो रहा है क्योंकि हम रिलीज कर रहे हैं इसी एटमॉस्फेयर में और वो इस एटमॉस्फेरिक एयर को जो है पॉल्यूट कर रहा है और एयर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ दिस अनडिजायरेबल गैसेस और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड दैट क्रिएटिंग द एयर पॉल्यूशन। उसके कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ यू कैन कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन का और डिफरेंट रीजन क्या है, उसको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो।